So, what is the agenda of this class and this course? And everyday agenda will be discussed in during the class. So we are starting here AWS. So you know all what is the AWS. I think everyone know AWS. But what you know, other people know who are not from the technical background. They know only this. They know only this Amazon services. Like this is the e-commerce services, but apart from this AWS, AWS has a different services. Approx AWS provides 200 services apart from this. Okay, so we will discuss approx 15 to 20 services during class, and every class will be more interesting because this is the totally hands-on practice lab. So no theory, no more theory, just I will discuss only concept, and all things will be fully practical except today class. Okay, so you will enjoy this class and you will learn. This is beneficial for all, like if you are IT professional and you want to change your technology, and this is also beneficial for the students who are going to get into IT company. So this will be the very good platform to learn and enhance your skill, and believe that every class will be very different, and you will learn a lots of technology. Okay, so just I want to ask who are from the IT background. Just can I know? Just can you type in a chat box who are from the IT? And just I want to just know. Yes, R. Bhaskar, yeah. Gaurav, yeah. Ritiks. No, I am asking who are working in a IT companies, not students who are working in a IT companies. So I want to say some things for them. Hi, sir, Yogesh here. Yeah, Yogesh, good evening. How are you? Good evening, sir. I'm fine. Yeah, so Yogesh, please tell me about yourself, and so all the audience can know about the IT cultures. Yeah, myself Yogesh Jote, and I'm currently working with one IT company in Pune, and I am a previous student of Vinay Singh sir when I was in college days. So currently I'm working with iSeries. It's a mainframe IBM product, and I'm now want to learn AWS. Okay, great. And I think you are team lead right now, if I am not wrong. Yeah, I'm team lead. Yeah, and you're having approx 11-year experience in IT. Yes. Yeah, that is good. Okay, great, Yogesh. So this is my pleasure. You are joining here again. Yes, it's my pleasure. Yeah. So you will learn a lot here, will you? Okay, so let's start with the topic. Okay. So my tagline is this: every problem has a solution. If not today, then there is tomorrow. Okay. इसका मतलब ये है कि हर समस्या का हल है, आज नहीं तो कल है. इसका मतलब ये है, ठीक है. और आईटी में ये चीजें काफी हमें हेल्प करती हैं. तो so teaching mode we like a mixed type that will be in English and Hindi. I think all are Indian, so there is no problem with English. क्योंकि बहुत लोग कोचिंग करते हैं और उनको इंग्लिश की वजह से टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती. तो मेरा फोकस है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सभी को इंग्लिश टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए और हिंदी टर्मिनोलॉजी समझ में आए, जिससे कि आप टेक्निकल जो वर्ड हैं उसको आप लिंक कर पाएं कि हमें कहाँ पर इसको यूज करना है.
एंड किस तरीके से यूज करना है हमें अपनी स्किल्स को. ओके, so agenda of today class is introduction about the clouds course for who can join this course. What is AWS, advantage of cloud, not AWS. AWS के बारे में प्रियोरली बातें नहीं करूंगा एडवांटेज में, क्योंकि डिफरेंट क्लाउड वेंडर्स हैं. अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कोर्स एंड EC2 इंस्टेंस क्रिएशन, क्योंकि ये जो लास्ट टॉपिक है ये 3 days ऑनगोइंग रहेगा. आज भी है, कल भी है एंड डे आफ्टर टुमारो. 3 days में हम लोग EC2 इंस्टेंस क्रिएशन सीखेंगे. तो आज जस्ट मेरा एक ब्रीफ इंट्रो रहेगा कि क्लाउड सर्विसेज को कैसे यूज करते हैं एंड हाउ यू कैन क्रिएट अ मशीन एंड डिप्लॉय एंड हाउ यू कैन एक्सेस दैट मशीन. ओके, सो दिस इज द बेसिक स्टेप, जस्ट बेसिक स्टेप. सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लाउड. सो बिल्कुल क्लियर सुनिएगा और इसके बाद क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे और आप उसके बारे में जवाब दे रहे होंगे. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज क्लाउड. ओके, एनीबॉडी नो? यस, सो जस्ट आई एम डिस्क्राइबिंग जस्ट बेसिक थिंग्स अबाउट द क्लाउड. बहुत काफी डेफिनेशंस है इंटरनेट पे, बट मैं इसको अपने लैंग्वेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ. और बहुत बेसिक बताऊंगा क्योंकि हमारे यहाँ पर टारगेट है AWS को कवर करना. तो बस क्लाउड में बेसिक बताऊंगा मैं कि क्लाउड टेक्नोलॉजी है क्या, और क्लाउड टेक्नोलॉजी यदि नहीं थी तो क्या IT कंपनीज वर्क नहीं कर रही थी? यस, IT कंपनी वाज वर्किंग दैट टाइम एंड IT कंपनी इज वर्किंग इन दिस टाइम ऑल्सो. ओके, तो सबसे बड़ा एडवांटेज अभी हुआ है क्लाउड का, जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है. तो क्लाउड टेक्नोलॉजी ने उसको और इनहांस कर दिया है. सभी सेक्टर बैक फुट पे हैं, बट IT कंपनियां फ्रंट पे लीड कर रही हैं पूरे कोरोना टाइम पे भी. तो इसका रीजन है कि क्लाउड सर्विसेज सबसे बड़ा की रोल प्ले कर रही हैं यहाँ पर. तो बिफोर क्लाउड क्या होता था उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, आप समझिएगा व्हाट हैपनिंग बिफोर क्लाउड. Suppose I am taking an example of a company like example Wipro. Suppose मैंने एक कंपनी विप्रो लिया और विप्रो का एग्जांपल मैंने यहाँ पर, ठीक है, लिया. तो यदि विप्रो कंपनी है और इनके पास डेवलपर्स हैं, सपोज विप्रो है डेवलपर्स लाइक डेवलपर्स 1000. ओके, एंड प्रोजेक्ट इनके पास सपोज कि फॉर एग्जांपल है ये, ठीक है, आप कंपेयर मत कीजिएगा उससे क्योंकि डिफरेंट फिगर्स हो सकते हैं. एंड प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट सपोज 50 प्रोजेक्ट्स इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं. तो यदि बिफोर क्लाउड मैं सिनारियो लेता हूं और क्लाउड के जो 2010 और 9 पे टेक्नोलॉजी आई थी, दैट वाज द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी. तो उस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई थी. और वो कैसी प्रॉब्लम थी? सबसे फर्स्ट यू कैन सी कि दिस इज अ नोड. यदि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट्स है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, सपोज यहाँ 50 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है और 50 में से फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो, उसके लिए हमें रिसोर्स की जरूरत है. और इनकी जो क्लाइंट रिक्वायरमेंट इज दैट he need node is just machine. तो आप इसको टर्मिनोलॉजी समझिएगा कि नोड बोले या इंस्टेंस बोलूं या सर्वर बोलूं या क्लाइंट बोलूं, तो आप सभी टर्म को कैच कीजिएगा कि कब हम क्या बोलते हैं किस चीज को. तो सपोज कि एक प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर 1, एंड इनके लिए हमें 500 कंप्यूटर्स की जरूरत है. ठीक है, 500 कंप्यूटर्स की नीड है. ओके, और एवरी कंप्यूटर शुड हैव एट लीस्ट 16 GB रैम मिनिमम. 16 GB रैम इनको नीड है. एंड 16 कोर CPU. And hard disk, every computer should have 1 TB hard disk, HDD. Okay, तो प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट की नीड है. फर्स्ट प्रोजेक्ट, इस टाइप में 50 प्रोजेक्ट है. ओके, तो जो चैलेंजेस सबसे पहले आ रहे थे कंपनीज को, वो चैलेंजेस क्या थे देखिएगा.
कि मुझे किसी भी कंप्यूटर को एस्टेब्लिश करने के लिए, और हमें इसमें 500 कंप्यूटर की नीड है। और सपोज मैंने एज्यूम किया कि अगर एक कंप्यूटर की कॉस्टिंग यहाँ पर आ रही थी मेरे पास 16 GB एंड 60, मैंने सपोज कि इसको मैंने कहा कि 2 लाख इसका जो एक CPU का बजट आ रहा था, एक CPU का वो आ रहा है 2 लाख। तो हमें 500 कंप्यूटर की नीड है, तो 500 कंप्यूटर का बजट देखिए कि कितना आएगा। 500 है क्योंकि हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है और वो फुलफिल करना है, तो हमें ये बजट काफी ज्यादा मैनेज करनी पड़ती थी कंपनी, क्योंकि उनको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। तो कंपनी पहले क्या करती थी कि लार्ज प्रोजेक्ट में वर्क करती थी। प्रोजेक्ट का जो बजट लार्ज हो उस पे ही सिर्फ वर्क करती थी, क्योंकि इसका अगर फॉर एग्जाम्पल कि इसकी 5 करोड़ सिर्फ कॉस्टिंग आ रही है कंप्यूटर नोड की, फिर डेवलपर कॉस्टिंग, फिर टेस्टर कॉस्टिंग, उसको फिर डिप्लॉय करने की कॉस्टिंग, ये अलग अलग कॉस्टिंग थी। तो कंपनी का काफी यहाँ पर बजट स्पेंड होता था। सो ओल्ड जो सिनारियो था क्लाउड के पहले, तो कंपनी ने ऐसे करके यहाँ पर मशीन एस्टेब्लिश कर दी। ओके, इस टाइप में करके कंपनी ने अप्रोक्स 500 मशीनें यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दी और सभी मशीनों को कॉन्फ़िगरेशन ये कर दिया इन्होंने। ओके, ये काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व करता था, क्योंकि हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। बट नेक्स्ट क्या सिनारियो चेंज हुआ कि ये तो फर्स्ट प्रोजेक्ट की नीड है, और इस टाइप में सेकंड प्रोजेक्ट की अपनी नीड थी। उनको रैम थोड़ी सी और इंक्रीज चाहिए थी, 32 GB CPU कोर, और उनको इंक्रीज चाहिए और हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट। तो सेकंड प्रोजेक्ट के लिए भी सेम इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया जा रहा था। ओके, सेकंड प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रा सेम सेट किया जा रहा था और उनकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से कंपनी में कॉस्टिंग फैक्टर जो हो रहा था वो काफी इंक्रीज हो रहा था। तो इसको जो रिड्यूस करने के लिए एक टेक्नोलॉजी 2010 पे इंट्रोड्यूस हुई, दैट वाज द वर्चुअलाइजेशन। और इस टेक्नोलॉजी के आने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि रिसोर्स शेयरिंग यहां पर पॉसिबल हो गई। ओके, रिसोर्स शेयरिंग का पॉसिबल होना, इसका रीजन आप देखिएगा कि रिसोर्स शेयरिंग किन टर्म में हम बोलते हैं इसको। तो रिसोर्स शेयरिंग मीन्स in term of hardware like a RAM, CPU and storage। ये किसके आने से पॉसिबल हुआ? वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस हुई, इसके आने से ये पॉसिबल हुआ। ओके, कि आपके पास अगर इस पीसी का जो है इस पीसी का जो रिमेनिंग रिसोर्सेस है, इस पीसी का रिमेनिंग रिसोर्सेस इनका है, तो इनको हम अदर प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस केस में क्या कंपनीज ने इंफ्रा क्रिएट करना स्टार्ट किया था, और वो इंफ्रा कुछ इस टाइप में था कि हाई कॉन्फ़िगरेशंस मशीन यहाँ पर कंपनी ने स्टैब्लिश करने स्टार्ट कर दिया, जहां पर सपोज कि फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना, दैट सिनारियो में बी डिफरेंट। रैम 320 GB, ओके, फॉर एग्जांपल। ओके, रैम ये कर दिया उन्होंने, कोर 500 कोर CPU। ओके, एंड हार्ड डिस्क, डिफरेंट हार्ड डिस्क यहाँ पर उन्होंने एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, गीगाबाइट टेराबाइट्स में एंड मल्टीपल टेराबाइट्स। ओके, तो हमने सपोज एज्यूम कर लिया कि 1 TB की जगह मैंने 500 TB सपोज ऐसा, और इन रिसोर्स को शेयरिंग स्टार्ट कर दिया कंपनीज ने। इनकी शेयरिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, और किसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ? वर्चुअल टेक्नोलॉजी की। यहाँ पर इन्होंने अलग अलग नोड स्टैब्लिश कर दिए कंप्यूटर जो लेस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के थे, और सभी को ये रिसोर्स रैम, सपोज इसके लिए इन्होंने रैम शेयर कर दिए, यहाँ 320 GB में इसको रैम प्रोवाइड कर दिया 4 GB। ओके, इसको जो रैम प्रोवाइड कर दिया 4 GB। ओके, एंड CPU इनको प्रोवाइड कर दिया 2 कोर, एंड इसी तरीके से
नेक्स्ट जो सिनारियो आया, डिस्क तो इनको 1 TB डिस्क प्रोवाइड कर दिया। ओके, ये किससे शेयरिंग हो रही है? जो आपके पास मेन रिसोर्सेस है। ये भी आपकी मशीन है, ये कंप्यूटर मशीन है जो ये आपको ग्रीन कलर पे शो हो रही है, दैट इज अ कंप्यूटर मशीन। तो जितनी नीड होती थी जिस प्रोजेक्ट के लिए उसके अकॉर्डिंग ये क्लाइंट नोड क्रिएट कर दिए जाते थे और यहाँ पर रिसोर्सेज की शेयरिंग होने लगी। तो यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि डेप्थ में नहीं जाऊंगा, हमारा एम कहाँ यहाँ पर है क्लाउड को बताना, तो इसको आपको देखने के लिए मेरे कुछ वीडियो हैं यूट्यूब ट्यूटोरियल पे, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट यूट्यूब ट्यूटोरियल है माइक्रो टेक्नोलॉजीज का, तो आप उस पर देख सकते हैं वर्चुअलाइजेशन के, उसमें कुछ वीडियोज प्रैक्टिकल्स अपलोडेड हैं, तो वो देख सकते हैं। तो अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज करते थे तो काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कंपनीज की, और हमारा जो कॉस्ट फैक्टर था वो काफी रिड्यूस हो गया वर्चुअलाइजेशन से। ओके, बट इसको भी मेंटेन करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए हमें अलग से पर्सन्स और अलग से रिसोर्सेस हमें हायर करने पड़ते थे जो इसको मेंटेन करते थे और इसको अप टू डेट रखते थे वर्चुअलाइजेशन। ओके, तो इस चीज को सक्सेस करने के लिए कई सारे टूल्स अवेलेबल थे, जिन टूल्स का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और आप इंटरनेट पे इनको ट्राई कीजिएगा। ओके, कि वर्चुअल टेक्नोलॉजी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो VMware, ओके, और Hyper-V। अपार्ट फ्रॉम दिस बॉक्स, इस टाइप में कई सारे टूल्स अवेलेबल थे जिनके थ्रू हमारा ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई थी। ओके, So it's like a virtual machine, like VPN, something like that? This is like a virtual machine। ये टूल्स थे जिनके थ्रू कौन सी मशीन क्रिएट की जाती थी? वर्चुअल। And in a single system, too many people can work on the same system. Yeah. Suppose I have a PC and I want to share my resources to the different my clients, so we can share with the help of virtual. Okay, so I have one, suppose there's a one CPU with a high configuration, so I can share that resources. Yeah. Suppose I will show. Yeah, I will show you. This is a virtualization. This is a virtualization. Okay, so let's. There's a single system. Yeah. Suppose, which you talked about in the first example. There's a different system for different people. But in virtualization, there's a single system which we shared by the too many guys. Yeah, correct. Okay. And in this case, जब भी हमारी रिसोर्सेस शेयरिंग होती थी, तो अगर ये मशीन डाउन हो गई, इसको हमने ऑफ कर दिया, तो ये रिसोर्स किसको प्रोवाइड कर दी जाती थी? अगेन इसको रिलोकेट कर दी जाती थी कोर मशीन। Suppose there's one machine is there, if you are sharing resources, if that machine is down, the whole system will be down, correct? No one can log in that machine. Yeah, if this is the machine, suppose this is a main machine. Main machine, if it goes down, so all clients cannot access the resource, not able to log in and not able to work. Okay. Now this concept is gone now. Okay, what you are telling about in after AWS. Yeah. So that was maintained by the IT companies. इसको मेंटेन करने के लिए IT कंपनीज को मेंटेन कर रही थी और खुद का इंफ्रा एस्टैब्लिश कर रही थी। बट अब यही कॉन्सेप्ट किसके पास चला गया है? यही कॉन्सेप्ट हु आर मेंटेनिंग दिस क्लाउड। ओके, तो क्लाउड जो है वो कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी, बड़ी टर्मिनोलॉजी नहीं है, क्योंकि IT कंपनीज के, अगर कोई भी यहाँ पर IT कंपनीज के आप लोग ऐड होंगे और IT एडमिन पे वर्क कर रहे होंगे, तो आपको काफी ये चीजें समझ में आएगी कि क्लाउड इसका सोल्यूशन अब आ गया है क्लाउड। ओके, सो क्लाउड में सोल्यूशन कैसे आ गया है इसको क्लाउड में, कि इसको कौन मेंटेन कर रहा है? क्लाउड। और क्लाउड पे हम लोग रिसोर्स ऑन डिमांड रिसोर्स की शेयरिंग कर रहे हैं। सो कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि इसको मेंटेन करने के लिए, जो मैंने अभी मैरून कलर से यह हाईलाइट किया हुआ, इसको मेंटेन करने के लिए कंपनी को खुद एम्प्लॉय हायर करने पड़ते थे और हमें इंटरनेट लीज पे लेना और उसको मेंटेन करना, वहां पर इंफ्रा एस्टैब्लिश करना, एयर कंडीशनिंग रूम क्रिएट करना, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर तब भी इंक्लूडेड थे, क्योंकि वो कौन से किस पे था? वो ऑन परमाइसेस क्लाउड, ठीक है ना, ऑन परमाइसेस था ये। ओके,
अपने ही इंफ्रा, अपनी ही बिल्डिंग पे ये हुआ करता था। अब क्या है कि ये ऑन प्रोमाइसिस ना होकर ये कहाँ चला गया है, क्लाउड के पास, हमारे पास, ठीक है ना। तो क्लाउड, अब इसका मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग मैनेज करना किसका काम है, क्लाउड का काम है। ओके, तो यहाँ पर क्लाउड कंपनीज इंट्रोड्यूस हुई, और क्लाउड जस्ट कंपनीज इंट्रोड्यूस हुई जिनका नाम क्या क्या है कंपनीज का, AWS, ये वेंडर्स हैं, क्लाउड वेंडर्स। ओके, AWS, GCP, गूगल क्लाउड एंड एजूर, डिजिटल ओशियन, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्लाउड वेंडर्स हैं, दीज ऑल आर दी क्लाउड वेंडर्स। ओके, कि इन्होंने अच्छा इसको यूटिलाइज किया, कि इन्होंने बड़े बड़े, ये क्या है कि बिजनेस ऑनर्स हैं, बिजनेस पार्टीज हैं, और इन्होंने क्या कर दिया कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, और ये इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज रिसोर्स शेयरिंग। ओके, सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया रिसोर्स शेयरिंग के। तो इसको अभी मैं डेप्थ में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने ये अभी बता रहा था क्लाउड, तो इसके लिए वर्चुअलाइजेशन के लिए आपको यहाँ पर डिफरेंट टूल्स की जरूरत है। तो सपोज कि मैं फॉर एग्जांपल वर्चुअल बॉक्स का एग्जांपल लूँ, कि आप मेरी मशीन देख रहे हैं, विंडोज 10 अभी ऑन गोइंग है मेरी मशीन पे, और मुझे पैरेलल पे लाइनेक्स पे भी वर्क करना पड़ता है, और लाइनेक्स में मुझे डिफरेंट सर्वर क्रिएट करने हैं। ओके, और विंडोज 7 पे भी। तो मैं उसको कैसे पॉसिबल करूं, या तो मैं 3 कंप्यूटर परचेस करूं और डिफरेंट उसमें इन्वेस्टमेंट करूं, या तो मैंने देखा कि मेरे कंप्यूटर का मैक्सिमम रिसोर्सेज फ्री रहता है, तो उसको मैं किस टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर पा रहा हूं यहाँ पर, ये दिस इज माई वर्चुअल मशीन। मैंने रेड हैट इंस्टॉल किया हुआ है, उबंटू इंस्टॉल किया हुआ है, और विंडोज 7। ओके, तो ये हमारे पास ये हो गया, और इस पे मैंने रैम शेयरिंग कर दिया यहाँ पर। और ये यदि इसको मैं रन करूंगा, तो मैं अब अपने पीसी में किस पे वर्क कर पाऊंगा, मैं उबंटू मशीन पे। ओके, तो अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। ओके, तो दिस इज द वर्चुअल मशीन कॉन्सेप्ट, कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पर बेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, विंडोज 10, और उस पे हमने वर्चुअल मशीन यहाँ पर स्टार्ट किया, और यहाँ पर मेरी वर्चुअल मशीन स्टार्ट होगी, और यहाँ पर देखिएगा उबंटू जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो लाइनेक्स का उबंटू है, ये वर्क करेगा। ओके, तो क्लाउड इंफ्रा खुद का भी सेटअप किया जा सकता है, बट वो काफी कॉस्टली रहता है क्लाउड इंफ्रा सेटअप करना। सो हमें क्लाउड वेंडर्स के साथ जाना चाहिए, इट्स अप टू यू। सो कंसर्न इज दैट लाइक दिस, कि हम क्लाउड को कैसे समझ सकते हैं। क्लाउड एक सपोज क्या हो गया, क्लाउड, इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, क्लाउड को एक मॉल से, जो शॉपिंग मॉल है, कि आप जो जनरल स्टोर पे जाते हैं, तो आपको हर सामान के लिए आपको वहां पर परचेस करने के लिए आपको बहुत सारे वहां पर आपको सामान मिल जाते हैं। बट अगर आप जनरल स्टोर और किराने की दुकान बोलेंगे कि मुझे शर्ट एंड पैंट भी मुझे परचेस करना है, तो वो वहां नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे मुझे टीवी भी परचेस करना है, टेलीविजन भी, तो वो वहां नहीं मिलेगी। ओके, तो बहुत कुछ वहां पर उस जनरल स्टोर पे नहीं मिलते हैं। आप टीवी की शॉप पे गए, शोरूम पे गए, और वहां पर आप बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर, क्योंकि घर से बाहर निकला हूँ, टाइम तो मैंने इन्वेस्ट किया, तो मुझे यहाँ पर किराने और जनरल का सामान भी चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा आपको अगर वेजिटेबल्स बाय करने हैं, तो वो नहीं मिलेंगे। ओके, तो हर प्लेस के लिए अलग अलग शॉप में मुझे जाना पड़ेगा। तो जो मॉल ओपन हुए हैं, मॉल क्या है कि आप एक बार मॉल पे एंट्री कर लीजिए, आपको एवरीथिंग वहां पर अवेलेबल है। आप टीवी भी परचेस कर लीजिए, आप क्लॉथ भी परचेस कर लीजिए, जनरल स्टोर परचेस कर लीजिए, ग्रोसरी परचेस कर लीजिए, एवरीथिंग। तो आप उसको थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं किससे, शॉपिंग मॉल से। कितने बड़े वेंडर हैं, बड़े 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 बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने सब कुछ एक ही लोकेशन पे रख दिया। ओके, तो दैट इज लाइक क्लाउड। ओके, सो दीज ऑल आर दी सर्विस प्रोवाइडर। ओके, और अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, तो सर्विस प्रोवाइडर का मीनिंग क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की, दे प्रोवाइड अ डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, लाइक सर्विसेज, मशीन सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, प्लेटफॉर्म सर्विसेज, एवरीथिंग क्लाउड वेंडर प्रोवाइड्स। ओके, जो आप प्रैक्टिकल, अभी तो टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा हूं मैं, जिससे कि आप थोड़ा सा इनको याद करें,
बट प्रैक्टिकल जैसे ही करेंगे तो स्टार्ट आपको ये 1 बाय 1 क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो हम लोग आते हैं कि सर्विसेज सर्विसेज कैसी। ओके, तो वर्चुअल मशीन इसके लिए आप इनमें इंस्टॉल कर लीजिएगा और रन करके देखिएगा। जैसे मेरी ये मशीन ubuntu स्टार्ट हो रही है, बूटिंग में थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि मेरी काफी रिसोर्सेज यहाँ पर शेयर हो रही हैं, तो इसको मैं टेम्परेरी ऑफ कर देता हूँ, पावर ऑफ। तो अभी जो आपने ये देखा वो किस टाइप का था, मेरे पास विंडोज 10 था यहाँ पर, विंडोज 10, और इस पे मैंने रिसोर्स इसकी शेयर करके मैंने इस पे ubuntu, रेड हैट एंड विंडोज 7 ये 3 मैंने रिसोर्स शेयर करके यहाँ पर किया। ओके, तो इसके लिए किसी भी कंप्यूटर को रन होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है? बेसिक रिक्वायरमेंट रैम, सीपीयू एंड हार्ड डिस्क। किसी भी कंप्यूटर को रन होने के लिए इन 3 हार्डवेयर की नीड होती है। अगर इतना है तो कंप्यूटर आपको सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो जो मेरा ये विंडोज 10 था, इस पे मेरे पास है 8 GB रैम, ओके, 2 कोर सीपीयू एंड 1 TB डिस्क। तो जो मैंने इस पे शेयर किया था अभी, यदि यहाँ पर मैंने कहा कि ubuntu मेरा इंस्टॉल है, ubuntu यहाँ पर है रेड हैट, ये दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस वन इज अ विंडोज 7। तो मैंने यहाँ पर भी इसको रैम जो शेयर किया था वो किससे शेयर किया था? जो मेरा बेसिक कोर कॉन्फ़िगरेशन है कंप्यूटर का, कैसे चेक कर सकते हैं आप? यहाँ पर सिस्टम इंफॉर्मेशन में आप चेक कर सकते हैं अपना सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन की करंट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या अवेलेबल है। ओके, सो आई हैव अ 8 GB फिजिकल मेमोरी रैम। ओके, तो मैंने इसी रैम से शेयर किया था। ओके, और मेरे पास कितने कोर सीपीयू है? यहाँ पर देखिए i7, यहाँ पर क्लॉक फ्रीक्वेंसी ये सीपीयू की है, और यहाँ पर 2 कोर सीपीयू मेरे पास अवेलेबल है। तो 2 सीपीयू में मैं मैक्सिमम 1 शेयर कर सकता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसको शेयर किया। तो सपोज मैंने इसको यहाँ पर इसको रैम प्रोवाइड कर दिया, रैम 1 GB, सीपीयू 1 कोर एंड डिस्क मैंने इसको सपोज कि 25 GB मैंने डिस्क प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो इस टाइप में मैंने किसका यूज करके किया था? ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी का। तो ये मेरा विंडोज पे था। ओके, अगर विंडोज मशीन मेरी ऑफ होती है तो ये सभी मशीन वर्क करना बंद कर देंगी। ओके, तो ये पहले की टेक्नोलॉजी थी जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी जिसको बोलते थे। अब क्लाउड के आने से क्या फर्क पड़ा है? क्लाउड के आने से क्या चेंज हो गया है कि सपोज मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ क्लाउड AWS का एग्जांपल, और AWS में कि जो विंडोज मैंने 7 इंस्टॉल किया था वो मैं अब किस पे करूंगा? किसकी सर्विसेज मैंने यहाँ पर अडॉप्ट की है, और वो सर्विसेज मैंने AWS। और AWS के पास, जैसे मेरे पास यहाँ पर 8 GB रैम, 2 कोर सीपीयू और 1 TB डिस्क है, तो AWS के पास इनफाइनाइट बोल देना चाहिए कि इतना है कि हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते कि इनके पास कितनी रैम, कितने सीपीयू और कितना डिस्क है। बट वो कहाँ पर है? इनके भी कोई ऑफिसेस है, इनका भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर सब कुछ एस्टेब्लिश है। तो हम लोग जो विंडोज और ये ubuntu और विंडोज 7 ये इंस्टॉल कर रहे थे, अब ये किस पे करेंगे हम लोग? इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब ये मैं किस पे करूंगा? ये AWS पे। ओके, तो ये फर्क है। अब इसको मैनेज करने का, यहाँ पर विंडोज 7 को मैनेज करने का वर्क किसका था? मेरा वर्क था। विंडोज 7 को मैं ही मैनेज करूंगा, उसकी सिक्योरिटी, वायरस, एंटीवायरस, अटैक, एवरीथिंग आई विल मैनेज। यहाँ पर कौन मैनेज करेगा उसको? AWS जो वेंडर है वो मैनेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, कि यदि आपके पास अमाउंट है, आपके पास काफी पैसे हैं और आपने घर पे रखे हैं, तो आप उसको सिक्योर करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है।
आप उसके लिए गार्ड बैठाइए घर पे, आप उसको सिक्योर कीजिए, आप उसके लॉकर बनाइए घर पे, आप उसको 10 लॉक्स के अंदर रखिए, ऐसा जमीन पे गाड़ के रखिए, वो आपका मैटर है। लेकिन अगर आपने वही पैसा बैंक को डिपॉजिट कर दिया, तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई मैनेज करने की? किसकी हो गई? बैंक की। कि आपका जो एसेट्स है उसको मैनेज करने का और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम क्या है? बैंक का। लेकिन अगर घर में आपने पैसे रखे हैं तो उसको मैनेज करने का और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का आपका वर्क है। ओके, तो अब ये पूरा वर्क किसको कौन मैनेज कर रहा है? AWS क्लाउड। तो फॉर AWS है, और इसके अलावा भी क्लाउड है, GCP गूगल का क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड है, डिजिटल ओशियन क्लाउड है। जो सब टॉप कंपनी है वो वर्ल्ड में टॉप कंपनी है, वो सबसे टॉप में है रैंकिंग AWS। अमेजन वेब सर्विसेज नेक्स्ट है, अमेजन अज्योर माइक्रोसॉफ्ट का, फिर है GCP। ये बिग लीडर है वर्ल्ड में जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत बड़े लीडर है, बहुत बड़े हैं। ओके, जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये मैंने जस्ट ब्रीफ बताया है, काफी डिटेल है ये, और डिटेल बताने में आपकी 5 क्लासेस हो जाएंगी, बट उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट अब आता हूं मैं, ठीक है ना, क्लाउड पे। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या समझे कि AWS इज अ वेंडर and provides the cloud services, cloud computing services. Okay, AWS is a vendor and AWS is a vendor and provides n number of services, एंड सर्विसेज इज लाइक दैट। मैं आपको सर्विसेज शो करता हूँ और प्रैक्टिकली मैं आपको शो करूंगा। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको इस पे लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए हमें क्या यूज करना है? AWS amazon.com एंड कंसोल। ओके, क्योंकि प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पर इसको मुझे लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपका अकाउंट होना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो इसको मैं आज लॉगिन कर रहा हूँ, कल आपको अकाउंट क्रिएट करना बताऊंगा, क्योंकि आज जस्ट एक ब्रीफ कर रहा हूँ आपको AWS से। ओके, तो इसको मैंने लॉगिन कर लिया अपना अकाउंट से। 5 6 8 मैंने इस कंसोल लॉगिन कर लिया। इससे आप घबराइएगा नहीं कि ये क्या लॉगिन कर लिया, क्योंकि आपको ये क्रिएट करना मैं कल बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है। तो अभी मैंने किसकी आपके बात की थी? AWS इज अ वेंडर एंड प्रोवाइड्स n number of services। तो सर्विसेज इज लाइक दैट। प्लीज सी हियर, क्या क्या सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितनी सारी सर्विसेज है जो ये क्लाउड प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लाउड वेंडर। अराउंड 200 सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड AWS। इसी तरह GCP कर रहे हैं, इसी तरह अज्योर कर रहे हैं। तो इन 200 सर्विसेज में हम लोग यहाँ पर 14 to 20 सर्विसेज पे वर्क करने वाले हैं, जो सबसे फ्रिक्वेंटली IT इंडस्ट्री पे यूज हो रही हैं। ओके, सबसे ज्यादा यूज हो रही हैं। आप किसी भी, चाहे तो आप एसोसिएट लेवल, प्रोफेशनल लेवल, सिक्योरिटी लेवल, बिगनर लेवल, किसी पे भी काम करेंगे, सर्विसेज आपकी यूज होनी है। ओके, जो बेसिक सर्विसेज हैं वो यूज होनी है। ओके, तो उस पे हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। दिस इज द क्लाउड सर्विसेज। ओके, सो अब अगर यहाँ पर बात आती है कि सर्विसेज, तो जो सर्विस आप यूज करेंगे उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ओके, तो आपको एवरी सर्विस के लिए आपको क्लाउड के पास पे करना पड़ेगा, जो भी सर्विस आप यूज करेंगे। सपोज आपके घर में सर्विसेज का मीनिंग मैं आपको थोड़ा सा और 2 मिनट या 3 मिनट टाइम लेकर आपको क्लियर कर दूं, जिससे कि आपके मन के डाउट्स जो रहे वो काफी क्लियर हो जाएं। तो सर्विसेज इज लाइक कि क्लाउड सबसे फर्स्ट और इसके बॉटम लेयर पे आ जाएगा सर्विसेज, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास
सर्विसेज अगर आप कोई यूज करते हैं तो उसको पे करना पड़ेगा, दैट इज अ फैक्ट। तो हमने क्लाउड प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया, सर्विसेज सेलेक्ट किया, और उसके लिए आपने जितना यूज करना है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि आपका एक बेसिक घर है और घर में आपने इंटरनेट सर्विसेज लगवाई है, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। आपने घर पे एसी लगवाया है तो वो सर्विस है, उसके लिए पे करना पड़ेगा, एयर कंडीशन के लिए। ओके, आपने घर पे 10 लाइट्स लगवाई है तो उसके लिए एडिशनल पे करना पड़ेगा। तो हर चीज के लिए पे करना पड़ता है। इसी तरह क्लाउड पे यहाँ पर भी एवरी सर्विसेज, अगर आप कोई भी सर्विसेज आप अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ओके, बट रीजन है यहाँ पर कि 1 ईयर के लिए ये हमें एक सर्विस फ्री देते हैं। 1 ईयर के लिए हमें अभी काफी कुछ फ्री देते हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, और डरने की बात नहीं है कि हमें पे करना पड़ेगा तो आप सीखना बंद कर दें। आप सीख सकते हैं, क्योंकि एवरी मंथ जो AWS क्लाउड है, AWS इन्होंने एवरी मंथ 750 आर हमें सर्विसेज फ्री देते हैं। EC2 इंस्टेंस की सर्विसेज हमें फ्री देते हैं एवरी मंथ। ओके, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें पे करना पड़ेगा। ये कब तक देंगे? फॉर तो काफी है AWS 750 आर अगर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, 750 आर मंथली। ओके, एवरी मंथ। तो यदि मैं 750 आर को 30 से डिवाइड करूं तो कितना हमारे पास सोल्यूशन आएगा? 750 डिवाइडेड बाई 30। ओके, तो काफी है। ओके, 750 आर तो हमारे पास काफी है, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 into 30 करता हूँ तो काफी है मेरे पास टाइम। ओके, तो 750 आर इज इनफ। ओके, यहाँ पर 12 मंथ 120 मैंने लिख दिया था, ये बाय ओके सॉरी, वो 12 मंथ है, 120 तो काफी हो जाएगा। ओके, तो 12 मंथ, तो इसको यूज कर सकते हैं हम लोग सर्विसेज। ओके, so next thing is that is the basic intro of the cloud. There are the lot of services like IaaS, PaaS, SaaS services, जिसको हम 1 by 1 जैसे प्रैक्टिकल होता जाएगा तो बताते चलूंगा, क्योंकि फर्स्ट डे में थ्योरी उतना बता दूंगा IaaS, PaaS, SaaS, तो आप वो भूलते जाएंगे। तो मैं जैसे जैसे यूज होगा ना वैसे बताते चलूंगा आपको। यस, एनी क्वेश्चन? या Yes, sir. I have one query. Is there any prerequisite required for this AWS course? Yeah, for this course? No. Coding is required, or any functional knowledge? Nothing. No. Coding is not required. If you are going to, if you are adopting developer profile along with cloud, then you have to know Python or JavaScript, Node.js, Java, these languages. But if you are not going for development profile, so this course is sufficient. So suppose if I have completed this course, to which job I can apply cloud in the cloud admin? Cloud associate and cloud admin. Okay. Both. Okay. So there are the lots of scope in a cloud associate level. Okay. So we can apply for the cloud admin only. We cannot for developer post. Developer is a different thing. You must have good in a programming language as well. Okay. So how much time it will take? How much time it will take to learn all this AWS admin course? The course will be completed in AWS completed in 30 days, but my course syllabus is different, because I am focusing on the different terminology like Linux, MySQL and Git. That is a basic need of the industry. Every company wants to work and wants to hire the different skill sets like RDS, क्योंकि RDS काफी ज्यादा लेवल पे यूज होता है डेटाबेस सर्विसेज, उसका मैं आपको आइडिया। In admin course we need SQL and all these things? No, बस basic. You can know only basic. Okay, need only basic. Okay. Yeah, no need of you go to depths.
just you can have a basic idea of the MySQL deployment, backup policy, etc. सर वेब डेवलपमेंट में इसका क्या यूज है? वेब डेवलपमेंट में इसका काफी यूज है, जो आप 3 to 4 अभी क्लासेस में पढ़ेंगे। सर्वर्स आप पढ़ेंगे, जैसे एक करंट सिनारियो लेता हूँ, IRCTC का सिनारियो लेता हूँ, और 2 सिनारियो में मेरे पास हैं अभी आपके क्वेश्चन से। एक है IRCTC, ओके, दूसरा है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक सेल होती थी, क्या उसको बोलते थे, फ्लिपकार्ट सेल शायद बोलते हैं उसको, ऑफर डे जो चलता है उसको कुछ बोलते थे फ्लिपकार्ट का। बिग बिलियन डेज, हाँ कुछ डेज चलता था वो, बिग बिलियन, ओके काफी उसको चेंज करा, ओके तो उसको बिग बिलियन। तो आप IRCTC की वेबसाइट जब 10 o'clock से 11 o'clock लॉग इन करते हैं तो इसका रिस्पॉन्स टाइम डाउन होता है आज की डेट में। पहले के टाइम पे ये बंद हो जाती थी, साइट हैंग होती थी, ओके, आपने देखा होगा। इसी तरह बिग बिलियन डेज है, जब भी इनका सेल ऑन गोइंग रहती है तो इनकी मशीनें तब भी प्रॉपर वर्क करती रहती हैं, कभी डाउन नहीं होती, ओके। तो क्या करते हैं कि जो भी है इनके वेब एप्लीकेशन है, जो आप आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा मैं उसको आपको जस्ट आइडिया दे दूं कि पहले क्या होता था कि सिंगल सर्वर रहता था, सिंगल मशीन, जिसपे हमारे वेब एप्लीकेशंस और डेटाबेस एप्लीकेशंस यहाँ पर दोनों ही होस्टेड होते थे, ओके। यहाँ पर वेब सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ओके, दोनों ही होस्ट रहते थे। अब सपोज इस मशीन की कैपेसिटी है कि इसकी कैपेसिटी है फाइनल कैपेसिटी है कि वन टाइम पे ये 1 मिनट में ये 1000 रिक्वेस्ट हैंडल कर सकती है, 1000 रिक्वेस्ट। बट अगर कोई भी रेलवे या इस पे फ्लिपकार्ट पे लॉगिन करता है तो आपसे पूछेगा नहीं, वो ये चेक तो नहीं करेगा 1000 रिक्वेस्ट आ रही हैं। सपोज रिक्वेस्ट आ गई 5000 सिंगल मिनट पे, इन अ मिनट, ओके, तो ये मशीन क्या होती थी, हैंग हो जाती थी, क्योंकि इनकी कैपेसिटी है ना 1000 की, ओके। मैंने आपको एक रिसेप्शन काउंटर पे बैठाया है, आप एक टाइम पे 2 या 4-5 बंदों को डील कर सकते हैं। फाइबर फॉल्टी है, कल चेंज करना। हेलो, यस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने जैसे इतनी रिक्वेस्ट आपके पास आ गई 5000, तो ये क्या हो गया कि सर्वर हैंग होने की कंडीशन पे आ जाते थे, ओके, सर्वर। बट AWS आने से क्या हो गया कि ये जो लोड है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओके। यहाँ पर पैरेलल पे लोड बना दिए, 1, 2, यहाँ पर मल्टीपल सर्वर्स बना दिए, ओके। जो आप आफ्टर 4 डेज में ये सीखेंगे, 4 to 5 डेज में इसको सीखेंगे, उसको हम ऑटो स्केलिंग बोलेंगे एंड लोड बैलेंसर बोलेंगे। यहाँ पर कितना सर्वर था, 1 सर्वर। यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, सेम कैपेसिटी के 5 सर्वर यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिए, ओके। वेब सर्वर, वेब सर्वर, ओके, वेब सर्वर, और यहाँ पर सपोज DB सर्वर, डेटाबेस सर्वर, और यहाँ पर वेब सर्वर, वेब सर्वर, ओके। यहाँ पर तो सिनारियो देखिएगा कि यहाँ पर क्लाइंट होते थे, नंबर ऑफ क्लाइंट, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और रेलवे रिजर्वेशन टिकट बुक कर रहे होते थे, ओके, अलग अलग लोकेशन से यहाँ पर। और ऐसा करके बहुत सारी रिक्वेस्ट हम किस पे सेंड कर रहे होते थे, एक ही सर्वर पे, ओके। यहाँ पर तो ऑब्वियसली है ना, ये सर्वर डाउन होगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 1000 और मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कितनी, 5000, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि इसके लिए जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, जस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, इसके डिटेल प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा। इसके लिए यहाँ पर क्या है, क्लाउड टेक्नोलॉजी ने एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर आए थे ये, और उसका नाम है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर, ओके, यहाँ पर ये देखिए, ओके, ये लोड बैलेंसर, ये कौन, क्लाउड ये लेकर आया। और लोड बैलेंसर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, जस्ट आप थ्योरी समझिएगा क्योंकि हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। तो ये जो लोड बैलेंसर यहाँ पर क्लाउड ने एस्टेब्लिश किए थे, लोड बैलेंसर, उन्होंने ये क्या कर दिया कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कि यहाँ पर से जितना भी ट्रैफिक आना होगा यहाँ पर से जितना ट्रैफिक आएगा यहाँ पर, ओके, सबसे फर्स्ट किसके पास आएगा, लोड बैलेंसर के पास।
और लोड बैलेंसर इसके बाद कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा? अगर कम ट्रैफिक है तो एक सर्वर पे करेगा, ज्यादा ट्रैफिक आ रहे हैं तो वो अलग अलग सर्वर पे ऐसा करता रहेगा। ओके, यहाँ पर ओके, तो ये डीबी जो रहता है इन सबसे कनेक्टेड रहता है डीबी। ओके, तो ये यहाँ पर से क्या करने लगे? लोड डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क करने लगे। आपके यहाँ पर सपोज कि आपके यहाँ पर सिटी में कोई रैली हो गई, अचानक रैली स्टार्ट हो गई, तो आपके जो शहर की सड़कें हैं वो कैसी बनाई गई थी कि 100 की कैपेसिटी की एक साथ 100 गाड़ियां आएंगी तो वो मैनेज हो जाएंगी। ओके, तो बहुत सारी सड़कें रहती हैं वो बंद रहती हैं या कम यूज होती हैं। जिस दिन ट्रैफिक वहां पर रैली हुई और 5000 एक साथ व्हीकल्स आ गए, तो वहां पर जो आपकी कॉलोनी की रोड है वो भी यूज होने लगती है। मतलब ट्रैफिक को क्या कर दिया जाता है वहां पर? रिडायरेक्ट करते हैं अलग अलग पाथ से, जिसके कि एक ही पाथ पे ज्यादा हैवी लोड ना आए और जाम की स्थिति ना बने और हमारी एवरी सर्विसेज स्मूथ होने लगे। ओके, तो हम वहां पर क्या यूज कर रहे हैं? इसकी जगह यहाँ पर लोड बैलेंसर है। ओके, तो ये यूज है। जिसने क्वेश्चन पूछा था आप बताइए, आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट कि वेब सर्वर का क्या यूज है? यस सर। इसके लाइव एग्जांपल्स हैं। क्या है? फ्लिपकार्ट है, जब इनमें डील्स लगती है तब भी इनके सर्वर डाउन नहीं होते। तो ये मशीनें अप और डाउन भी हो सकती हैं एज पर द नीड। ये मशीनें कम और ज्यादा हो सकती हैं। कैसे कम ज्यादा होती हैं? तो एक और कॉन्सेप्ट है लोड बैलेंसिंग का जो हम आगे सीखेंगे। ओके, तो जस्ट अभी तो हम लोग इतना ही यहाँ पर देखते हैं और ये मशीन, ठीक है। तो इसके कई सारे एडवांटेज हो गए, आप एडवांटेज भी इनका कंपेयर कीजिएगा एडवांटेज, ठीक है ना। अब क्या है कि AWS है, तो AWS के डिफरेंट रीजन्स हैं एंड अवेलेबिलिटी जोन है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, कि AWS के जो इंफ्रा है ये भी कहीं ना कहीं स्टैब्लिश है और कि आपको 10 to 15 मिनट और आपका लिया जाएगा बस, ठीक है, 10 to 15 मिनट। रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन, रीजन और दूसरा है कॉन्सेप्ट AZ stands for availability zone. Okay, so region is like that. This is a region. Okay, ऐसे इनके रीजन हैं, ऐसे करके अप्रोक्स आज की डेट में 25 अप्रोक्स रीजन है। ओके, आप गूगल पे इसको देखिएगा और यहाँ पर क्या है 25 रीजन पे डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन है। मतलब अवेलेबिलिटी जोन मतलब डेटा सेंटर्स, ये विद इन 100 किलोमीटर होंगे अप्रोक्स। ओके, यहाँ पर दीज आर द अवेलेबिलिटी जोन। ओके, दिस इज अ, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजन? सपोज मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया मुंबई, दिस इज अ रीजन, रीजन सिडनी। ओके, रीजन US। ओके, इस टाइप में करके ये मतलब MNC कंपनी है और इनके बहुत सारे ऑफिसेस हैं और बहुत सारे इनके रीजन्स हैं। ओके, और एवरी रीजन की अलग अलग कॉस्टिंग है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस सभी गवर्नमेंट के अलग अलग हैं, इसलिए आपको यहाँ पर चूज करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर इनके जो ये रीजन्स हो गए, रीजन्स में से एक लोकेशन, फिजिकल लोकेशन जहाँ पर इनके सर्वर्स फिजिकली अवेलेबल हैं और इसको हम रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। ओके, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया? डेटा सेंटर्स हो गए और ये डेटा सेंटर्स जनरली आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। ओके, ये डेटा सेंटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, तो यहाँ पर डेटा सेंटर सपोज मुंबई का है तो मुंबई में 1 डेटा सेंटर इसका हो गया, A डेटा सेंटर A, यहाँ पर B डेटा सेंटर हो गया दूसरा B, ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पर C है। ओके, तो सपोज कि हमने हमारा कोई डेटा सेंटर, सपोज मैंने A पे अपनी मशीन डिप्लॉय की थी और ये किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गई, किसी कारण से कुछ भी इश्यूज आ गए, तो मेरा जो सर्विस है B से स्टार्ट हो जाएगी और C से स्टार्ट हो जाएगी यदि मैंने ऐसी सर्विसेज AWS से ऑलरेडी लेके रखी है। ओके, और ऑल आर बी इंटरकनेक्टेड, बट हमें सर्विस लेनी पड़ती है और उसके चार्जेस होते हैं। ओके, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन हो गए। ओके, और ये अवेलेबिलिटी जोन आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते। ओके, सो आपस में ये कम्युनिकेट नहीं करते, और कम्युनिकेट यदि करते हैं नहीं करते, पहला तो है कि कम्युनिकेट, जैसे कि ये डेटा सेंटर्स जो हैं, ये डेटा सेंटर्स अवेलेबिलिटी जोन को हम डेटा सेंटर्स भी बोलते हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं, बट आपस में ये कनेक्टेड नहीं, और ये 100 किलोमीटर की रेंज पे रहते हैं, ठीक है ना, जितने भी इनके सर्वर्स हैं
या डिफरेंट ऑफिस से 100 किलोमीटर की रेंज पे रहेंगे। ओके, तो यदि हमें इस जोन को कनेक्ट करना है तो एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे 3rd और 6th क्लास बाद, VPC। तो हम इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये कनेक्टेड नहीं रहते आपस में। ओके, तो दिस इज द रीजन। इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा और इसके आप गूगल पे सर्च कीजिए कि इसके अवेलेबिलिटी जोन कितने हैं। तो यहाँ पर इसका ग्राफिकल लोकेशन आपको अवेलेबल मिलेगा। यहाँ पर देखिए कि ये जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है ये इनके डिफरेंट जोन्स हैं। सपोज ये AWS की वेबसाइट पे है। ओके, काफी सारे जोन्स हैं, अवेलेबल हैं, और फिर इनके डेटा सेंटर्स रीजन्स हैं। ओके, इनका डेफिनेशन है और अवेलेबिलिटी जोन। ओके, तो आप इनकी गूगल की वेबसाइट पे और देख लीजिए। ठीक है, ये इनके जोन्स के नाम लिखे हुए हैं। देखिए, US ईस्ट जोन है, US वेस्ट जोन है। ये अवेलेबिलिटी जोन से ये मत घबराइएगा कि क्या लिखा हुआ कोडेड फॉर्मेट में, ये जस्ट एक लोकेशन है जहां पर इनके सर्वर्स रखे हुए। ओके, तो ये जो हाईलाइटेड है रीजन है और ये इनके लोकेशन है, एज लोकेशन। तो हमारे इंडिया में मुंबई पे है इनका रीजन। ओके, तो सबसे फर्स्ट मैं मशीन को लॉगिन करता हूं और आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा इसका बताता हूं मैं कि आपने कहा, मैंने बहुत देर से मैं बोलता जा रहा हूं कि मैंने यहाँ पर कि मुझे एक मशीन सेट करनी। सपोज मुझे एक मशीन, सपोज की मेरा टारगेट है यहाँ पर प्रैक्टिकल है। सपोज कि इस रीजन पे मुझे इस पर्टिकुलर रीजन पे मुझे विंडोज 10 मशीन अपनी लॉन्च करनी है। ओके, विंडोज 10। तो मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेगी इसको लॉन्च करने के लिए? बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी है? विंडोज 10 मुझे लॉन्च करनी। सिर्फ आज ही विंडोज बता रहा हूँ, एवरीडे हमारा लाइनक्स पे वर्क होगा। सिर्फ आज विंडो पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, लॉन्च करना। विंडोज आगे से हम लोग यूज नहीं करेंगे। ओके, तो विंडोज मशीन मुझे कहाँ पर लॉन्च करनी? यहाँ पर। तो जो मेरा इंफ्रा बनेगा वो कैसा बनेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कि AWS पे मुझे अकाउंट होना चाहिए, AWS। ओके, और AWS पे यदि मेरा अकाउंट रहेगा तो उसके अंदर मुझे अपना विंडोज 10 एक सेटअप करना है। इसका नाम है विंडोज 10। ओके, ये AWS पे। तो वो कैसे बनाएंगे हम लोग, उसकी स्टेप देखेंगे। ओके, विंडोज 10। तो किसी भी, मैंने आपको स्टार्टिंग स्लाइड पे बताया था कि अगर कोई भी मशीन हमें क्रिएट करना है तो हमें बेसिक नीड क्या होती है? रैम, CPU और हार्ड डिस्क। ओके, तो देखिए, रैम, CPU और हार्ड डिस्क। तो मैंने यहाँ पर रैम 1 GB मैं सेलेक्ट करूंगा टेम्परेरी, क्योंकि इस मशीन को मैं क्रिएट करूंगा और डिस्ट्रॉय कर दूंगा थोड़ी देर बाद। CPU मैंने यहाँ पर 1 कोर CPU और HD 30 GB यूज करूंगा मैं। ओके, मैंने 1 GB CPU 1 कोर इसलिए लिखा क्योंकि ये फ्री सर्विस है। इसके अगर ऊपर कॉन्फ़िगरेशन पे अगर मैं चूज करूंगा दैट इज द पेड सर्विस, सो आई एम गोइंग विद द फ्री सर्विस। ओके, तो मुझे ये करना है। तो रिक्वायरमेंट क्या है? यू मस्ट हैव AWS लॉगिन, जो आपको कल बताने वाला हूँ इसकी डिटेल में, बट ऑलरेडी है तो उसका प्रैक्टिकल मैं आपको आज बता रहा हूँ। लॉगिन कैसे क्रिएट करते हैं, आपको जिसको भी आता है एक बार ट्राई कीजिएगा। लॉगिन क्रिएट करके रखेंगे तो अच्छा है। लॉगिन क्रिएट, फिर हमारे पास इसको हमें कैसे यूज करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखिए आप। ओके, ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा और शेयर किया जाएगा। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं। तो मैंने यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो लॉगिन करना है AWS कंसोल, ये URL लॉगिन करना है। लॉग बैक, क्योंकि मैंने पहले से ही लॉगिन करके रखा है इसलिए। तो स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो कर रहा हूं मैं इसके लिए? यहाँ पर कंसोल लॉगिन। सेकंड स्टेप, ठीक है, स्टेप 2 मेरी जो रहेगी वो रहेगी स्टेप 1, ये मेरा हो गया। स्टेप 2 है जो मेरा, यहाँ पर से सर्विस पे क्लिक किया मैंने और सर्विस पे क्लिक करने के बाद EC2। तो इस EC2 से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। EC2 क्या है? EC2 एक सर्विस का नाम है जहां पर हमें इंस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये वर्ड यूज किया गया इंस्टेंस। ओके,
यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है इंस्टेंस, ओके, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ इंस्टेंस, ओके। विंडोज 10 मेरा जो है वो इंस्टेंस क्रिएट होने वाला है एक, और इंस्टेंस का जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, इस पूरे का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, इस पूरे का कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा, और ये पूरा मशीन मेरा कहाँ पर डिप्लॉय होगा, इस रीजन पे, ओके, यहाँ पर। तो इंस्टेंस इज नथिंग दैट इज जस्ट अबाउट द योर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको यहाँ पर इंस्टेंस और AMI बोलते हैं, ओके, AMI। तो फर्स्ट मैंने क्लिक किया यहाँ पर EC2 के बाद सेकंड स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो शेयर किया जाएगा आपसे कि कैसे इसको लॉन्च करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंस्टेंस सेलेक्ट किया, तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक क्रिएटेड इंस्टेंस था, ये शो कर रहा है, बट मुझे यहाँ पर न्यू इंस्टेंस लॉन्च करना है। तो मैं न्यू इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए सबसे फर्स्ट मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस। स्टेप देखिएगा, लॉन्च इंस्टेंस मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिएट करने वाला हूँ अपनी मशीन पे। यहाँ पर देखिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी लिस्ट ओपन होके गई कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने चाहते हैं। यदि आप लोकल मशीन पे करते हैं तो आपको ISO फाइल डाउनलोड करनी होती है, उसको आपको बोटेबल बनाना पड़ता है और उसके बाद उसको सिस्टम पे स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करना होता है। बट यहाँ पर कई सारे अवेलेबल हैं, देखिए जहां पर फ्री लिखा है वो फ्रीली अवेलेबल है, जहां पर फ्री नहीं लिखा है वो फ्री नहीं है, ठीक है ना। जैसे प्ले स्टोर यूज करते हैं हम लोग, मोबाइल एंड्रॉइड पे प्ले स्टोर यूज करते हैं, तो उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको फ्री अवेलेबल हैं और कुछ सॉफ्टवेयर आपको पेड अवेलेबल हैं, ओके। तो इसी तरह यहाँ पर ये इसका मार्केट प्लेस है, ये देखिए AWS का मार्केट प्लेस है ये, जहां पर आपको एवरी सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप कौन सा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर, एवरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो चाहिए आपको इंस्टॉल कर लीजिए, ओके। एवरीथिंग अवेलेबल है जस्ट लाइक अ प्ले स्टोर, ओके। तो मुझे क्विक स्टार्ट में करना है और मैंने आपको कहा कि विंडोज मैं आपको लॉन्च करके बताऊंगा, तो विंडोज सबसे पहले मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ओके, विंडोज 2009 सर्वर, क्योंकि ये फ्री है। सेकंड स्टेप मैंने कहा था कि मुझे किसी भी मशीन को डिप्लॉय करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, रैम, CPU और हार्ड डिस्क। तो मैंने विंडोज 10 नहीं था मेरे पास, विंडोज 2009 मैंने सेलेक्ट कर लिया, 2019 मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। सेकंड स्टेप है चूज योर इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप इज जस्ट मशीन सर्विसेज, इनके जो है इंस्टेंसेस उसके नाम है। तो ये देखिए फ्री टायर के लिए हम एलिजिबल हैं, T2.micro, दिस इज द फ्री ओनली। इसके अलावा आप अगर किसी सर्विस को अडॉप्ट करेंगे तो वो पेड है सभी, ठीक है। तो इस मशीन की कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, 1 CPU 1 GB रैम, ओके। तो बेसिक रिक्वायरमेंट मेरी क्या थी, 1 GB CPU एंड 1 GB रैम यहाँ से फुलफिल हो रही है, जो कि इस पिक्चर से आप देखिए ये चीजें मेरी फुलफिल हो गई, ओके। नेक्स्ट आते हैं हार्ड डिस्क पे, ओके। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया यहाँ पर, नेक्स्ट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टेंस आपको एक मशीन डिप्लॉय करने हैं या 30 सर्वर बनाने हैं। आपका सिंगल, मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया, मेरे पास 100 कंप्यूटर स्टैब्लिश हो जाएंगे, कहाँ पर, AWS सर्वर पे, ओके, AWS क्लाउड पे 100। तो सोचिए कितना आसान लाइफ है। अगर मुझे एक कंपनी स्टैब्लिश करनी है और 100 PC खरीदने हैं और 100 PC में मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने हैं, तो मुझे कई दिन लग जाएंगे। बट यहाँ पर आपने 1000, सपोज आपने 500 कर दिया, 500 मशीन लॉन्च हो जाएंगे, ओके। तो मैंने 1 किया जस्ट यहाँ पर। आपको ऑटो असाइन IP, तो इनके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, जस्ट अभी आपको मैं लॉन्च करना बताता हूँ इसको, क्योंकि काफी टाइम भी हो गया। नेक्स्ट थिंग इज ऐड स्टोरेज। तो यहाँ पर 30 GB, यहाँ पर जो मैंने आपसे बात कही थी वहीं पर हम लोग पहुंच गए फिर से, कि मैंने इस मशीन को कितना स्पेस देना है, मुझे 30 GB। तो 30 GB मैंने यहाँ पर मशीन को प्रोवाइड कर दिया। आप कितना भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ओके। एडिशनल स्टोरेज भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। SSD आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ओके। नेक्स्ट ऐड टैग को अभी मैं स्किप करता हूँ क्योंकि आगे बताऊंगा। सिक्योरिटी ग्रुप, तो मुझे इस मशीन को एक्सेस करने के लिए हमें पोर्ट की जरूरत होगी, तो पोर्ट वगैरह हमारी क्लासेस में आएगा, जस्ट क्योंकि ब्रीफ इंट्रो है क्लास का, तो आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्च सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप की अलग से क्लास है। और 3389 पोर्ट में यूज करूंगा एक्सेस करने के लिए इसको, लॉन्च, ओके।
की पेयर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। की पेयर आप क्रिएट कर लीजिए यहाँ से। ओके, यहाँ पर 2 एल्गोरिथम RSA और ED, आप इसको मुझे याद दिलाना है नेक्स्ट क्लास में। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसका इंट्रो दे दूंगा आपको, बट आज तो मैंने की पेयर जिसके थ्रू मैं लॉग इन करूंगा, सपोज माई विंडोज की, इसका मैंने वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन क्रिएट एंड यू कैन गिव द नेम एंड डाउनलोड की पेयर। ये की पेयर जो होती है वो एक ही बार हमारी क्रिएट होती है। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट ये कर रहा है माई विंडोज की, तो मैंने यहाँ पर विंडोज की मैंने नाम दे दिया। ओके, ये डाउनलोड हो गई। ये एक ही बार डाउनलोड होगी, बार बार डाउनलोड नहीं होगी, इसलिए इसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा जब भी आप करते हैं। एंड लॉन्च इंस्टेंस। ओके, मेरी मशीन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई और यहाँ पर देखिएगा ये मशीन लॉन्च हो रही है और थोड़ी देर बाद ये स्टार्ट हो जाएगी, जिसको मैं एक्सेस करना आपको बताऊंगा। ये कहाँ पर मेरी क्रिएट हो गई है मशीन, ये कहाँ पर क्रिएट हो गई है मेरी मशीन, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्रिएट हुई है मेरी मशीन। ये पर्टिकुलर लोकेशन है, यहाँ पर क्रिएट हुई है मशीन मेरी। ओके, मुंबई रीजन पे। उसका आपको डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ कहाँ पर क्रिएट हुई है। ये देखिए यहाँ पर रीजन्स हैं, आप रीजन चेंज कर सकते हैं कि एन वर्जीनिया है, ये सबसे चीपेस्ट रीजन है, तो इसको भी चूज कर सकते हैं। यूएस में है, ठीक है, कैलिफोर्निया में है, डिफरेंट रीजन्स है, हांगकांग है, सिंगापुर है, सिडनी है, टोक्यो है। ओके, तो दीज आर दी रीजन्स। मैंने जिसकी बात थोड़ी देर पहले की थी कि डिफरेंट रीजन्स होते हैं, तो यहाँ पर मैंने कौन सा सिलेक्ट करके रखा था, मुंबई रीजन्स। ओके, तो मेरी मशीन यहाँ पर ये लॉन्च हुई है मुंबई रीजन। यदि मैं इसको सिडनी सेलेक्ट कर लूंगा तो मेरी मशीन वहां पर शो नहीं होगी। ओके, तो मैंने इस लोकेशन पे मुंबई पे अपना मशीन डिप्लॉय किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि आपकी ये मशीन देखिए रनिंग पे है, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं और इसका नाम मैंने विंडोज सर्वर 2019 मैंने यहाँ पर इस मशीन का नाम सेट कर दिया। ओके, विंडोज सर्वर 2019। ओके, फिर यहाँ पर हम लोग रीजन सबने आपको यहाँ पर बता के रखे हैं, ठीक है। और किस जोन पे मेरी अवेलेबिलिटी जोन पे यहाँ पर ये क्रिएट हुई है मेरी मशीन, यहाँ पर देखिए AB साउथ B 1B। तो मैंने कितने बताए थे, मुंबई में कितने जोन्स हैं, मुंबई में 3 जोन्स हैं। हर रीजन पे 3 to 7 जोन्स रहते हैं, तो मुंबई में 3 जोन्स है। तो मेरी मशीन जो क्रिएट हुई है एग्जैक्टली वो यहाँ पर क्रिएट हुई है इस लोकेशन पे। ओके, ये लोकेशन पे मुंबई में और इस लोकेशन पे। तो मुंबई में 3 इनके ऑफिसेस होंगे अलग अलग 100 किलोमीटर रेंज पे, और इनके वहां पर डेटा सेंटर्स अवेलेबल हैं। ओके, ये हुई। अब मुझे इस मशीन को एक्सेस कैसे करना है, तो इस मशीन को एक्सेस करने के लिए आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इस मशीन को आप यहाँ से तो एक्सेस कर नहीं सकते, कनेक्ट आप कीजिए, कनेक्ट में क्लिक कीजिए। आपको डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल करनी है वो कर लीजिए, नहीं तो आपके पास विंडोज पे क्या रहता है कि विंडोज जो है मेरा, विंडोज पे ऑलरेडी एक सर्विसेज रहती है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। इसको आपको क्लिक करना है, विंडोज रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ओके, यहां पर आपको कौन सी सर्विस, आपको इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या सर्विस चाहिए, आपने EC2 तो लॉन्च कर लिया आपने, EC2 और आपको इसको एक्सेस करना है, तो आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पर RDP, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की, और इसके बाद है यूजर नेम, पासवर्ड एंड IP। कि जो मेरी मशीन यहाँ पर क्रिएटेड हुई थी, मेरी मशीन यहाँ पर क्रिएट हुई है और इस लोकेशन पे मेरी मशीन यहाँ पर क्रिएट हो गई। ओके, यहाँ पर ये लोकेशन पे मेरी मशीन क्रिएट हो गई। ओके, विंडोज। और इस मशीन को मुझे कहाँ से एक्सेस करना है, सपोज कि मैं अपने घर पे बैठा हूँ, यहाँ पर मेरा घर है। ओके, ये मेरा घर है और ये मेरा लैपटॉप है, इस PC से मुझे एक्सेस करना है, ये मेरा PC है, पर्सनल PC। और इससे मैं किसको एक्सेस करने जा रहा हूँ, ये ब्लू कलर की जो मेरी मशीन है यहाँ पर। ओके, तो इसको एक्सेस करने जा रहा हूँ यहाँ से यहाँ पर। तो मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इसको एक्सेस करने के लिए, यहाँ पर मैंने आपको लिखा है क्या चाहिए मुझे, एक RDP सॉफ्टवेयर चाहिए, रिमोट डेस्कटॉप। ओके, एंड यूजर नेम, पासवर्ड जो आपने मशीन कनेक्ट किया है, और उसका IP एड्रेस। तो चलिए ये देखते हैं कैसे हमें मिलेगा। तो यूजर नेम सबसे फर्स्ट, यूजर नेम बाय डिफॉल्ट अगर किसी मशीन का रहता है तो यहाँ पर देखिए क्या रहता है
जैसे इसको आपने सेलेक्ट किया और कनेक्ट में क्लिक करते हैं तो यूजर नेम आपको यहाँ पर क्या मिल गया, एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने इसको कॉपी करके रख लिया, यहाँ पर पेस्ट कर लूं मैं। एंड मुझे सेकंड पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड मुझे कैसे मिलेगा, तो अभी मैंने एक फाइल डाउनलोड की थी, ये देखिए फाइल है मेरी डाउनलोडेड। ओके, ये फाइल डाउनलोडेड है मेरी, इसको मुझे एक्सेस करना है। तो मैंने इसको एक्सेस करने के लिए, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फाइल रहती है उसको मुझे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर चूज किया और डाउनलोड पे मैंने इसको सेलेक्ट किया। ये पासवर्ड है मेरा, हाईली इनक्रिप्टेड रहता है जिसको आप इजिली ट्रैक नहीं कर सकते, तो इसको डिक्रिप्ट कर देता हूँ सबसे फर्स्ट में। तो मुझे ये पासवर्ड मिला। ओके, कॉपी कर लूँ इसको भी मैं, तो मुझे पासवर्ड भी इस मशीन का रिट्रीव हो गया है। ओके, एंड नेक्स्ट मुझे इसका आईपी एड्रेस रिक्वायर है। तो आईपी देखिए, इसका आईपी एड्रेस क्या है, ये है। ओके, यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको ये दिखेगा IPv4 पब्लिक आईपी। अगर हमें किसी मशीन का पब्लिक आईपी एक्सेस करना है तो पब्लिक आईपी होना चाहिए, तो इसका पब्लिक आईपी ये है, और इसको भी मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ कि होस्ट। तो मुझे काफी कुछ यहाँ पर मिल गया है, या तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ओके, बट मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ, आगे बताने वाला हूँ मैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अब स्टेप्स में हम लोग आते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले ओपन RDP, और इसको आपको कहां पर करना है ओपन, आपकी मशीन पे करना है, लोकल मशीन पे, जिस मशीन से आप एक्सेस करने वाले हैं। ओके, उस पे आपको ओपन करना है। ओके, तो मैंने इसको चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ मैं इसको चैट बॉक्स में, और आप पैरेलल पे जो लोग बहुत एक्टिवली कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, आप इसको जस्ट तुरंत अपने RDP पे ओपन करिए, मेरा मशीन एक्सेस होगा। ओके, यहाँ पर। ओके, ओके, तो ये मशीन एक्सेस होगी आपकी, आप तुरंत इसको एक्सेस कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर पैरेलल पे एक्सेस करना बता रहा हूँ। तो मैंने RDP ओपन कर लिया, और मैंने आईपी जो मेरा था, आईपी एड्रेस क्या था मेरा, 13.232.129.173। जस्ट मैं इसको कनेक्ट मैंने कर दिया, यहाँ पर कनेक्ट देखिएगा। यूजर नेम मुझसे पूछ रहा है, यूजर नेम मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ये यूजर नेम, यूजर एंड पासवर्ड काफी लेंथी है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड ओके कर दिया मैंने। ये मशीन थोड़ी देर बाद कनेक्ट हो जाएगी, और मैं कहाँ पर अपनी कौन सी मशीन एक्सेस कर रहा हूँ अब मैं, कि मेरी कौन सी मशीन लॉन्च हो गई है। ओके, थोड़ा टाइम ले रही है लॉन्च होने में। ओके, लॉन्च हो जाएगी। ये मेरी मशीन विंडोज 10 बस स्टार्ट होने वाली, विंडोज 10 बार बार मैं बोल रहा हूँ, विंडोज सर्वर। ओके, देखिए मेरी मशीन लॉन्च हो गई है, और अब मैं किस पे हूँ, क्लाउड पे हूँ। ओके, जस्ट मैं क्लाउड पे हूँ मैं, ये मेरी मशीन लॉन्च हो गई है। और अगर आपको इसको चेक करना है, ओके, ये मशीन डिस्कनेक्ट हो गई, क्योंकि आपने भी पैरेलल से लॉगिन कर लिया होगा, मल्टीपल लोगों ने। ओके, तो जिसने भी लॉगिन किया है थोड़ी देर के लिए उसको ऑफ कर दें, क्योंकि एक और चीज मैं आपको बता दूं जिससे बता सकूं मैं, एक और चीज थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दें, जस्ट ओके, शट डाउन कर दीजिए वहां से तुरंत। मैं यहाँ से एक्सेस करके आपको एक और चीज इसमें बता दूं, फिर इसको क्लास को स्टॉप करता हूँ। तो यहाँ पर से ये हो गया। ओके, और मैं इसको चेक करके आपको बताता हूँ। तो ये देखिए इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर इसका डिस्क आप चेक करेंगे तो कितना मिलेगा डिस्क इसका आपको, मैंने 30 GB एलोकेट किया था, और 30 GB ये 29.9 GB यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है। ओके, तो ये मेरी मशीन लॉन्च हो गई है जो विंडोज मशीन थी। और इसका आईपी यदि मैं चेक करूंगा, पब्लिक लोकल आईपी, तो लोकल आईपी और पब्लिक आईपी दोनों ही मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पर लोकल आईपी चेक करने के लिए IPCONFIG, ये मेरी मशीन का लोकल आईपी है, गेटवे है। एंड अगर पब्लिक आईपी चेक करूंगा, कर्ल IFCONFIG.ME, तो यहाँ पर ये पब्लिक आईपी शो कर रहा है। पब्लिक आईपी देखिए किससे मैच कर रहा होगा, जो मेरा आईपी एड्रेस था जिसके थ्रू मैंने लॉगिन किया था उससे मैच कर रहा है। ओके, तो मैं इस लोकेशन पे हूँ मैं अभी। ओके, और यदि मैं आपको अपनी जो लोकल मशीन है जिससे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, उसका आईपी अगर मैं शो करूंगा, तो
आईपी कॉन्फ़िग, यहाँ पर आपको डिफरेंट आईपी डिस्प्ले होगा, देखिएगा मेरा डिफरेंट आईपी है और पब्लिक आईपी शो करूंगा कर्न ifcon.fig.me। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट आईपी है, तो ये मेरी लोकल मशीन का आईपी है और यहाँ पर जो मैंने आपको शो किया था यहाँ पर ये आईपी। ओके, तो जस्ट दिस इज द एडवांटेज ऑफ द क्लाउड। ये तो एक बहुत छोटा एडवांटेज है क्योंकि वेब सर्वर आपको क्रिएट करना बताए जाएंगे, वेब सर्वर आपको मल्टीपल सर्विसेज बताई जाएंगे। सोचिए कितना एडवांटेज मिलेगा आपको क्लाउड यूज करने का। विंडोज आज के बाद नहीं पढ़ाऊंगा मैं सर। ये जो फ्री वाला सर्वर अपन जो क्रिएट करते हैं कितने दिन तक वैलिड रहता है? और इट्स वैलिड तो ऑल टाइम है, बट आफ्टर 1 ईयर इसके चार्जेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अभी मैं इस मंथ का अपना बिलिंग अकाउंट शो करता हूँ तो बिलिंग इंक्रीज होती है डे बाय डे, बट 1 ईयर तक नहीं इंक्रीज होगी। ओके, क्योंकि मैं एडिशनल सर्विसेज भी यूज करता हूँ तो मेरा बिलिंग डैशबोर्ड डिफरेंट हो सकता है आपसे। ओके, तो मेरा बिलिंग है जो अभी का करंट बिलिंग है, देखिए 2.98 INR है। आपका ये 0 दिखाएगा 1 ईयर तक, क्योंकि आपको जितनी सर्विसेज मैं बताऊंगा उसमें आपको कुछ भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आपको पे करना पड़े। ओके, तो इन फ्री सर्वर मींस देयर इज अ लिमिटेशंस of learning or we need to no there are the no limitation of the learning. You can learn a lot in a free. Okay, AWS भी अपनी मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं 750 आवर मंथली फ्री सर्विस देकर, जिसके थ्रू यू कैन लर्न अ लॉट। एंड आप अपनी कंपनी को बोलें और आप 4 लोग को बोलें कि इस सर्विस को यूज कीजिए तो बहुत अच्छी है। तो ये इनका एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होगी और हमारे लर्निंग के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है AWS। So is it same like other platform? If suppose I have learned AWS, so can I work on different cloud or? Yes, you can work on GCP, Azure, DigitalOcean, every cloud if you will learn any one cloud. Okay, so it's a similar to it is the same GUI interface. GUI interface is different. Yeah, GUI interface is different, but almost all concept is same. Like यहाँ पर ये मशीन लॉन्च करने को EC2 बोलते हैं। अभी तक हम लोग नॉर्मल पीसी में क्या पढ़ते थे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, एक कंप्यूटर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं और उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर उसको इंस्टॉल करने की पूरी प्रोसेस को ये क्या बोलते हैं, EC2 सर्विस। Azure इसको कुछ और बोल रहा होगा, EC2 की जगह उन्होंने EC नाम रख दिया होगा। ओके, बट आफ्टर दैट यदि आप मशीन्स का सिलेक्शन करना है तो आपको वर्क तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यस, in company means what types of work is done currently is done by this in this admin part? Like a web hosting, route 53, route diversion, load balancing, scaling, optimization, and cost optimization. Okay, got it. Okay, got it. Yeah. So one by one, I will explain all the things, all the services related to this. This is the beauty of the cloud. Advantage आपने देख लिया होगा within 1 second। अगर मुझे यही मशीन लॉन्च करनी होती तो मुझे काफी टाइम लग रहा होता है यहाँ पर लॉन्च करने में। ओके, तो AWS के जो फीचर्स हैं AWS के वो क्या हैं? AWS में जो है ऑफर्स AWS ऑफर्स क्या करते हैं आपकी? अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पे एज यू go. Okay, availability means you can access this machine from anywhere. ओके, वर्ल्ड के किसी भी कोने पे है तो आप अपनी मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक हमारा मन का जो डर रहता था कि मैं लैपटॉप लेकर जाऊंगा कहीं पर, रास्ते पे ये हो गया वो हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ जरूरत नहीं। आपको तो अपने यूजर नेम, पासवर्ड और आईपी एड्रेस लेकर चलना है और कुछ नहीं। सर मशीन पे बैठेंगे नाउ इज नो नीड ऑफ buy 1 TB or 2 TB hard disk. No, just you can buy dual core PC and everything's cloud will be managed. Cloud will manage. So, and hard disk will be sometime it will fail or sometime it will be might be have something with the hard disk, external hard disk, but in this you don't have any issue, correct?
in Yeah, the yeah. future. Long run, we can Because put it in. all responsibility of the cloud vendor. If Yeah. one disk is sometimes if one disk fails to work, so cloud vendor is responsible for that, and he will manage. He will attach another machine. How much The cloud vendor. security? How much securities? Is there any attempt of hacking and all these things? Yes, their cloud is a highly secure. I will take a class, 1 or 2 class on the security, and मैं आपको वहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीचेस बताऊंगा और कुछ बेसिक कि कैसे हैकिंग पॉसिबल है और कैसे उसको सिक्योर करना है. आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन अ सेपरेट लेक्चर्स. तो सिक्योरिटी का काफी है, क्योंकि सिक्योर नहीं रहेगा डेटा तो कौन क्लाउड पे जाएगा. तो वो अलग से बिल्कुल टॉपिक्स हैं. 2 से 3 क्लास पे वो टॉपिक कवर होंगे सिक्योरिटी का. तो काफी इंटरेस्टिंग है, आने वाली क्लास काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के बाद हम लोग लाइनक्स पे ही पढ़ेंगे और लाइनक्स पे ही वर्क करेंगे. स्केलेबिलिटी क्या मतलब क्या है कि आपकी नीड हो गई कि सपोज आज मेरा एप्लीकेशन है 1 TB. ओके, 1 TB डिस्क की नीड थी और मुझे इंस्टेंट जरूरत पड़ गई कल 2 TB की. आप सिंगल क्लिक पे क्लाउड पे आप 2 TB डिस्क कर सकते हैं. CPU 4 थे तो आप उसको 8 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं. रैम आपकी 1 GB थी, वो आप उसको 16 GB स्केल कर सकते हैं. ओके, एज पर द नीड आपको सिंगल क्लिक पे सेम इन्वायरमेंट चेंज होगा. तो मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्केलिंग ऑफ द क्लाउड, जहां पर हम इसको कवर करेंगे. तो आप एज पर द नीड अपने इंफ्रा को चेंज कर सकते हैं. पे एज यू गो, आप जितना यूज करेंगे उतना आपको पे करना पड़ेगा. ओके, इसका मतलब पे एज यू गो का है. एक लाइव सिनारियो आज के एग्जांपल पे दे दूं कि अगर आपको भोपाल से पुणे ट्रेवल करके जाना है तो देयर आर द मल्टीपल वे. आप अपनी कार से जाइए, आपको 5000 पे करना, 10,000 का आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा कार से जाएंगे तो. ओके, तो आपने कार के लिए पे किया, आपने ओला किया तो ओला ने कहा कि 20,000 आपने पे किया आपको, तो आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है. आपने कहा ट्रेन से जाएंगे, वहां पर आपने 500 इन्वेस्ट किए, पहुंचना तो आपको वहीं पर है, डेस्टिनेशन आपका पुणे है. आपने एयरप्लेन सेलेक्ट कर लिया, एयरप्लेन में आपको 10,000 लगे. तो पे जिस सर्विस को आप लेंगे उस सर्विस के चार्ज हैं और उतना आप पे कीजिए और एंजॉय कीजिए क्लाउड की सर्विसेज. ओके, दिस इज द दिस. ओके, और इससे बेहतर एग्जांपल इसका नहीं हो सकता था समझाने के, इसलिए मैंने ये एग्जांपल समझाया कि आप जितना पे करेंगे उतनी बेहतर आपको सर्विस मिलेगी और उतनी फास्ट. ओके, तो अभी हमने फ्री वाला लिया है तो 1 GB रैम, 1 CPU इनफ है हमारे वर्किंग करने के लिए. ओके, सो जस्ट 2 to 3 minute introduction. Anybody doubt on this topic? Sir, is it necessary to download Linux or a Linux should be installed? Because most of the IT companies are working on the Linux. Okay, that's why I will go with a Linux. Limited companies are using Windows in a real life. Only service-based companies are using Windows. Mostly development company and core companies are preferring Linux. Yogesh, okay, so we have Mohit Kumar. Yes, Mohit, please unmute 1 minute. Yes, hello Mohit, are you available? No, I think he is not available. Yogesh, you are available, and yes, Anjali. Yes, Anjali, sir. yes, you are available now. Yes, so you are working in which company? Cognizant. Cognizant. Yeah, Anjali is working on Cognizant. So, can you say what are the proportional ratio of the Linux and Windows in your company? Actually, sir, currently, when I joined Cognizant, I am working on an Informatica ETL tool, and that time they show the importance of Linux, that it is a multi-purpose operating system and better for IT industries. And many of them, I think almost all companies are using Linux at a time, not a Windows. They go for Linux only. And for learning AWS, you should have a basic knowledge of Linux as well. Yeah. So that's why I am covering the lots of commands and concept of the Linux in a coming session. Yeah. So Linux is the mandatory. That's why I am avoiding Windows.
Okay, so everyone can join this course. EC2 instance. I have told you EC2 instance, and course I will share the syllabus. Just is there are some. Okay, AWS syllabus. This is the AWS syllabus. What topic I will cover, और इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, but this is the core concept of what I am going to cover here. These and these all services, and everything will be fully practical oriented, not much theory. Okay. These all Sir, can you services. share this agenda in our group, WhatsApp group? Yeah, I will share tomorrow night. Okay. Yeah. And this was the AWS syllabus, and this is the Linux syllabus, and I will share all syllabus. And apart from this, I will also cover Git and database, and will share that syllabus. Okay. So yes, if anybody have any kind of doubt, you can contact me on my mobile number. My mobile number I have already shared in a group, and I am an admin of that group. You can contact me personally. Okay. And this batch is the cost of this batch is 20,000, but this time we have a 95% discount, and if you want to continue, then you can just pay 999 only. Okay, और इससे सस्ता कुछ नहीं मिलेगा. Okay, अगर किसी को फाइनेंशियल इशू है तब भी आप पे कीजिए, और पे नहीं कर सकते तो उसका अल्टरनेट सोल्यूशन मैं बताऊंगा, किसी चैरिटी पे दान कर दीजिए उतना, बट फ्री में मत पढ़िए. ठीक है ना, फ्री में, क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती. ओके. तो सर लाइनेक्स हम लोग मतलब डाउनलोड कैसे करेंगे सर? सब कुछ AWS पे ही करना है, तो नो नीड टू डाउनलोड. ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर. हाँ, मत कीजिए, क्योंकि इतना हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम नहीं है. आप मत बनाइए उस पे कुछ भी. यहाँ पर सब कुछ मैं आपको करवाऊंगा. सर विंडोज पे चल जाएगा ना, मतलब अगर विंडोज एवरीथिंग. सर स्पेस का कोई प्रॉब्लम? क्या बोल रहे हैं? मतलब स्पेस कम है तो सर नहीं समझ में आया क्वेश्चन आपका. मतलब सर मेरा जो हार्ड डिस्क. कोई फर्क नहीं, क्योंकि हार्ड डिस्क इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? आपके जो मैंने विंडो 10 इंस्टॉल किया था उसने 30 GB लिया विंडो 10 मेरा, लेकिन वहाँ मेरी स्पेस कहाँ पर एलोकेटेड हुई है, किस लोकेशन पे एलोकेट हुई है? यहाँ पर हुई है ना, इस लोकेशन पे. तो मुझे यहाँ पर से घबराने की जरूरत नहीं है. मेरा तो 30 GB मैंने कहाँ पर, मुंबई पे स्टोर किया है. अब क्लाउड वेंडर ने मुझे 30 GB दिया है ना स्पेस, तो जस्ट मैं एक्सेस कर रहा हूँ उसको, मेरा डिस्क नहीं यूज कर रही है. अगर आप वर्चुअल टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो आपका डिस्क यूज करेंगे, क्लाउड का यूज करेंगे तो क्लाउड कंपनी डिस्क प्रोवाइड करेगी. ओके. आप अपनी कार लेंगे तो उसमें आप खुद का पेट्रोल डलवाएंगे. आप ओला पे जाएंगे तो आपको खुद का पेट्रोल नहीं डलवाना. ओके, आपको उसके लिए जस्ट पे करना है. समझ गए? यस सर. Okay, just okay. Thank you to joining, and just give your confirmation on the group, क्योंकि 1 क्लास से आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा. 1 क्लास में कोई भी मास्टरी नहीं हो जाती. आप कम से कम 4 to 5 क्लास करेंगे तब आपको एक ट्रैक मिलेगा पढ़ने का. 1 क्लास से कुछ नहीं होता. ओके, तो आप समझिए, कंफर्मेशन दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे. अगर आपको आगे की क्लास कंटिन्यू करना है देन यू कैन ज्वाइन. ओके, Thanks a lot, sir. It's very fruitful session, and Yeah, definitely I thank will you. join. Definitely I will join, and it's very fruitful and very descriptive session. And definitely I will join. The means class will be on the weekends or weekdays. What time? I am planning for 5 days in a week. If more than 10 to 20 IT person will be join, we have a call from different IT companies and they want to join, but there are some time issue because 7:30 is a company time, and my batch time is 6:30. So that is some restrictions. If the company employee will join and they approx 20 or 20 plus, so I will shift the time. I will shift at 8 To o'clock. have the class on weekend also, if someone, because in I will weekends. try. I will try for weekend Yeah, also. Okay, thank you. Thanks a lot, sir, Yeah. for this Thank you, session. thank you, Definitely, it's very enjoyable session. Yeah, And that is my definitely, pleasure. Yeah. Yeah, definitely it clear my all doubt related to the cloud.
And definitely I will join this session. Yeah. Thanks a lot. Thanks a lot. Okay. Thank you. Yeah. Okay. Thank you all. Thank you so much, sir. Okay. Thank you all. Yeah. Thank you so much, sir.